हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज डिटरमिनेंट के ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये डिटरमिनेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स में यूज होता है। डिटरमिनेंट का सबसे ज्यादा यूज 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर है मैट्रिसेस, जिसमें यूज होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन डिटरमिनेंट। ना, डिटरमिनेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आगे जाना चाहता हूँ। नाउ, ये जो आपके सामने मैथमेटिशियन है, दैट इज जर्मन मैथमेटिशियन G.W. Leibniz. He worked on determinant concept. Kramers developed the rule for solving linear equation using determinant. क्रैमर्स नाम के मैथमेटिशियन ने भी डिटरमिनेंट पे काम किया था। जिन्होंने क्या किया है, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उन्होंने वो उसके बारे में हमें बताया। माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो दैट डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय टू वर्टिकल बार, और उसके अंदर ये जो स्मॉल लेटर आप देख रहे हैं, A, B, C, D, these are called as elements of determinant. Determinant denoted by capital letter D or delta. This triangle का symbol is called as delta. We can use capital letter A, B or C. Okay. Now, determinant of order 3 by 3. This is very, very, very important definition. Remember it. The determinant of order 3 is a square arrangement of 9 elements enclosed between two vertical bar. Two vertical bar में ये enclosed होता है. There are 9 elements. देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 elements. Okay. So ये vertical bar और horizontal bars में arrange किया जाता है. So this is very important definition. Just remember it. Now, the horizontal lines are called as rows and vertical bars are called as columns. Okay. Now, expansion of determinant, as you know that if this is determinant, it is expanded like positive, negative और पॉजिटिव का साइन दे देते हैं और फर्स्ट रो को हम एलिमिनेट कर देते हैं। देन A1 1 टाइम्स फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे, A22, A23, A32, A33, दिस फोर एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। सिमिलरली फिर आफ्टर दैट -A12 सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, वी गेट A21, A23, A31, A33, that is this determinant. After that we will eliminate the last column, we get A21, A22, A31, A32, that is the last determinant. This is the way we have to expand the determinant. Now after this, where the use, what is the use of determinant? Determinant का सबसे ज्यादा यूज होता है to solve the three equation in three variable. Three equation in three variable where the variables are unknown. Now three equation three variable को solve करने के लिए जो important mathematician ने काम किया उनका नाम है क्रैमर्स. Therefore it is also called as Cramer's rule or determinant rule. Now A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 are the coefficients of X, Y, Z respectively. D1, D2, D3 are the constant. So D is A1, A2, A3, B1, B2, B3 and C1, C2, C3. D at X means replace A1, A2, A3 by D1, D2, D3 and so on. Now, what is the value for x? X is d at x by d, y is d at y by d, and z is d at z by d, where d is not equal to 0. So, this is the use of Cramer's rule. Now, after this, determinant can also be used to find out the given equations are consistent or not. So, consider the system of linear equations. These are the three linear equations. The three linear equations are called as consistent if value of determinant is 0. Now, यहाँ पे A1, B1 and C1 is the constant. A1, B1 and this C1 is the constant. इसको हम फर्स्ट रो में लिखेंगे A1, B1, C1 एंड सिमिलरली A2, B2, C2, A3, B3, C3. और जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और अगर आंसर 0 आया तो वी से दैट द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. Now, after that, we can use determinant to find the area of triangle when all the vertices are given. A, B, C are the vertices. A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3, y3. Now, what is the area of triangle?
The formula says that area of triangle is 1 by 2 determinant x1 x2 x3. ये फर्स्ट कॉलम में लिखना है x1 x2 x3, y1 y2 y3 in the second column and 1 1 1 in the third column. We can also write this in a horizontal way कि x1 x2 x3 रो में, y1 y2 y3 सेकंड रो में एंड 1 1 1 थर्ड रो में. हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फाइनल आंसर में स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें. Now, area is a positive quantity. Hence, we always take absolute value. What is the meaning of absolute value? For example, आपने एरिया कैलकुलेट किया, आपको आंसर है -39, बट एरिया निगेटिव नहीं होता, तो हम दोनों साइड क्या लगा देते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस लगा देते हैं और हम लिखते हैं कि एरिया इज 39 स्क्वायर यूनिट. सिंस एरिया इज नेवर निगेटिव, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू. इफ द एरिया इज गिवन, कंसीडर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेटिंग द अननोन कोऑर्डिनेट. अगर आपको ऑलरेडी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिया है और आपको कोई एक कोऑर्डिनेट बोल दिया, जैसे y3 फाइंड करो और आपको एरिया बता दिया, इज दैट क्लियर? अगर आपको y3 फाइंड करने के लिए बोला और एरिया बता दिया, तो आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन लेकर उस सम को सॉल्व करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ऐसे एमसीक्यू करेंगे. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दिस. इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, दैट मीन्स एरिया जीरो हो गया. समझो आपने ये सॉल्व किया और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? जीरो. तो हाफ इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो. मतलब एरिया क्या हो गया? एरिया जीरो. अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि पॉइंट एबीसी क्या हो गए? कोलिनियर. क्यों? अगर एरिया जीरो है, मतलब एरिया बनेगा ही नहीं, तो ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर. मतलब आपका वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. इज दैट क्लियर? तो इफ डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आई, तो आप समझ जाइएगा कि वो कोलिनियर है. पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट एमसीक्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. Determinant is the number associated with a matrix. Determinant is a number associated with a square matrix. None of these. The correct answer is option C. My dear friends, हमें most appropriate answer पे टिक करना है. डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. यस, करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है. डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट डिटरमिनेंट इज अ नंबर विच इज एसोसिएटेड. डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर है. जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर में क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स? फाइनल आंसर में एक नंबर आता है ना. डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आता है? एक नंबर आता है. तो व्हाट इज डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अच्छा, वो डिटरमिनेंट, वो जो नंबर आया वो कब कैलकुलेट होता है? जब आपका जो डिटरमिनेंट जिसका कैलकुलेट कर रहे हो वो कौन सा मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स 3 रो 3 कॉलम हो, 2 रो 2 कॉलम हो. इस तरीके से होना जरूरी है, अदरवाइज हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते. सेकंड एमसीक्यू. द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, व्हाट इज गिवन हियर माय डियर फ्रेंड्स? 4 7 -7 0. हाउ टू कैलकुलेट? तो हम लोग सबसे पहले डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 4 इंटू जीरो, 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो. फिर ये माइनस फॉर्मूले का है. देन वी विल मल्टीप्लाई 7 इंटू -7, 7 into -7. So let us calculate what we will get. 4 0 is 0 minus 7 into -7, that is -49. So 0 plus 49. So what is the correct answer? Correct answer is 49. Option B. Now next MCQ, second MCQ. The value of determinant is. Now what is I? Here I is iota. आपने complex number में पढ़ा होगा. What is I? I is under root -1. So you know that what is I square? I square is -1. What is I cube? I cube is minus I. What is I raised to 4? I raised to 4 is 1. Remember these few concepts which will help you to solve this determinant. Now what is the determinant entry? 1 I 3. Now what is I cube? I cube के प्लेस पे हम लिखेंगे -I 2 5. Third row, that is 3 2. What is I raised to 4? I raised to 4 is 1. Is this clear? Let us calculate. Simply आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, एक शॉर्टकट दिखाता हूँ. पहले मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट समय मैं आपको एक ट्रिक भी दे दूंगा. तो राइट हियर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव.
ओके, नाउ हाउ टू इवेल्युएट? ये +1 लिखना है आपको, डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट बनाना है, फिर ये हो गया आपका -i, डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट, और ये आपका हो गया +3, डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट। ना, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेट द फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दीजिए ना। तो आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और जो एलिमेंट बच गया वो लिखेंगे। क्या एलिमेंट बचा टेल मी? 2 5 2 1, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 5 2 1। सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करिए, क्या बचा बोलिए? -i 5 3 1, ये आपको लिख देना है यहाँ पे, -i 5 3 1। अब आप थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, क्या बचा? -i 2 3 2। लेट अस राइट -i 2 3 2। नाउ सॉल्व, जैसे आप 2 by 2 डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, आप आराम से सॉल्व करिए। सो व्हाट वी विल गेट, 1 टाइम 2 1 जा 2, -5 2 जा 10, -i टाइम I -i into 1, that is -i -15, plus 3 times -2i -2 3 जा 6। So just simplify. So what is 2 minus 10? That is -8, -i time -i -15, plus 3 times -2i -6. Open the bracket and solve. So you will get -8, open the bracket, minus minus plus I square plus 15i plus minus minus, तो -3 2 जा 6i, plus minus minus 3 6 जा 18. So after solving we get -8 and -18, that is -26. What is I square? I square is -1. Now, my dear friends, what is 15 minus 6? That is +9. +9i. Now, what is -26 minus 1? That is -27 plus 9i. So, what we will get? -27 plus 9i. -27 plus 9i. That is option A is the correct answer. Hope that आपको सम अच्छे से समझा होगा. Let us proceed to next MCQ. थर्ड क्वेश्चन ना, आपको ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसकी वैल्यू बताई गई है 0, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सम को सॉल्व करने का मैं आपको बेस्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, सी यार, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वो ट्रिक को डिस्कस किया है आपको। आप ये ट्रिक्स को ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है यहाँ माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके, ये दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल। तो डायगोनल के नीचे अगर कोई भी जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 है और डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट अगर 0 है, तो सिंपली वो डिटर्मिनेंट का आंसर होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मतलब उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? जो डायगोनल में एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? दैट इज a1 into b1 into c3। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 है, तो व्हाट इज द आंसर? इसको जब आप सॉल्व करोगे, आप इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमें आएगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, x-1 x-2 x-3। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे ये मिलेगा, इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? तो सिंपली एक ही चीज याद रखना था, ये कंसेप्ट कब अप्लाई करोगे? जब आपको डायगोनल के नीचे या डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होगा तो ही अप्लाई करना है। सो लेट अस सिंप्लीफाई। सो वी गेट x-1 इज 0 और x-2 is 0 और x-3 is 0। So finally we get x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। What is the correct answer? Option A, that is 1, 2, 3। Next question, फोर्थ MCQ। आपको दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स 2x 5 8x which is equal to 6 minus 2 7 3। नाउ क्या करना है हमें? हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है। तो व्हाट इज 2x into x? दैट इज 2x स्क्वायर माइनस व्हाट इज 5 8 जा 40। सॉल्व करिए, 6 3 जा दैट इज 18 माइनस
What is 7 into minus 2? That is minus 14. So we get 2x square minus 14 is 18 plus 14. 14. So we get 2x square. What is 18 plus 14? 18 और 14 कितना हो जाएगा my dear friends? That is 32 plus 40. So we get 2x square is 72. So x square is 72 divided by 2. So आप 2 से my dear friends इसको cut करो. Let us simplify. So we get 36. So therefore x square equal to 36. What is the value of x? X की value possible है plus minus 6. So what is the correct answer? आप 2 से कट करेंगे तो 36 आएगा और 36 का 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस 6. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्लस माइनस 6. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ एमसीक्यू. माय डियर फ्रेंड्स, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक सिखाता हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे करना है. आप सबसे पहले ये डिटरमिनेंट को कॉपी कर लेते हैं हम लोग फटाफट. नाउ व्हाट आर द एंट्रीज? 1 0 2 0 2 3 2 3 0. अब आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? आपको ये नंबर दैट इज 1 और 2, ये दो नंबर को क्या करना है? आपको ये साइड में कॉपी करना है. इधर ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 कहाँ कॉपी करना है? दिस साइड 1 2. ना ये 2 और ये 0 को आपको लेफ्ट साइड में कॉपी करना है. 2 और 0 दैट इज 2 0. नाउ व्हाट यू विल डू माय डियर फ्रेंड्स? अब आपको क्या करना है? अब आपको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, ये 2 का 0 का और 3 का, देन 1 का 2 का और 0 का, देन 0 का 3 का और 2 का. ये केयरफुली ध्यान दीजिएगा, इनका मल्टीप्लाई करनी. चलिए 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके आपको ब्रैकेट में लिखना है. स्टार्ट. 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 इंटू 3, यहाँ पे 0 आ गया तो 0 ही हो जाएगा. ठीक है, प्लस बिकॉज 2 3 जा 6, 6 0 जा 0. 1 इंटू 2 इंटू 0 दैट इज 0. 0 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और ये 0 जा 0, तो ये पूरा 0 आ गया. माइनस, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? अब आपको राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है. कैसे? आपको इसका मल्टीप्लाई करना है. ध्यान से देखिएगा, ये 0 0 और 0 का मल्टीप्लाई, देन 2 2 2 का मल्टीप्लाई, देन 1 3 और 3 का मल्टीप्लाई करना है. चलिए स्टार्ट. 0 इंटू 0 इंटू 0 दैट इज 0, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, प्लस 1 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 1 जा 9. So my dear friends, what we will get? 0 minus 8 plus 9 that is 17. So what is the correct answer? Minus 17. कितना फास्ट हो गया, क्विकली हो गया ना. So this is one of the trick you can use in the multiple choice question. But ये मेथड आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में या स्टेट बोर्ड पेपर में नहीं कर सकते. ये मेथड आप एंट्रेंस एग्जाम में और एमसीक्यू क्वेश्चंस में कर सकते हो. Let us proceed to the next one. Question number 6. Now आप ये देखो, ये एक स्पेशल टाइप का डिटर्मिनेंट है माय डियर फ्रेंड्स. आप देख सकते हैं, जब भी डिटर्मिनेंट डायगोनल में 0 हो, जब भी डायगोनल में क्या हो? 0. और डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट है दैट इज 2 - 3 4. ये देखो, ध्यान से देखो, 2 - 3 4, वही उसका अपोजिट नंबर 2 - 3 4. देखो 2 - 3 4, इसका अपोजिट क्या होगा? 2 का -2, -3 का 3 और 4 का -4. तो 2 - 3 4 का अपोजिट साइन में -2 3 - 4. ये नंबर अगर आपके नीचे है, डायगोनल के नीचे -2 3 - समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट में 0 हो और डिटर ये सॉरी डायगोनल में 0 हो और डायगोनल के ऊपर अगर ए बी सी है, तो डायगोनल के नीचे -a -b और -c. अगर ये टाइप का कोई भी डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा. होप दैट आपको समझा होगा. तो कीप इन माइंड, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रिक लिख के रखा है. द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये टाइप के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, इज 0 वेन एवर इट्स ऑर्डर इज ऑड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर इज ऑड? ये हाउ मेनी रो? देयर आर 3 रो, 1 2 3, देयर आर 3 रो एंड 3 कॉलम. तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑड है. व्हाट इज द ऑर्डर? इन दिस केस ऑर्डर इज 3/3, दैट मीन्स 3 रो 3 कॉलम. तो दिस इज ऑड, ये ऑड है. तो जब भी ऑड रहेगा और वो इस तरह का मैट्रिक्स हो,
जीरो ए बी, देन डायगोनल में जीरो, फिर ये ए बी सी, और यही ए बी सी अपोजिट साइड में लाइक माइनस ए माइनस बी माइनस ए, इस तरह का डिटर्मिनेंट होगा तो आंसर जीरो। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज जीरो, ऑप्शन ए। सो दिस इज द बेस्ट शॉर्टकट, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे हम लोग? वी कैन राइट पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। सो पॉजिटिव एक्स डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट, माइनस टू टाइम्स डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट, एंड पॉजिटिव टू टाइम्स डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट। ये अपना स्टैंडर्ड मेथड है। फिर हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे। नाउ पहले कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचा? टेल मी। एक्स टू टू एक्स, इसको उठा के हमें लिख देना है एक्स टू टू एक्स। सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा? टू 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 एक्स। ठीक है, टू 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 एक्स। सो राइट डाउन टू 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 एक्स। थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, क्या मिलेगा? टू एक्स टू टू, टू एक्स टू टू। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। सो वी गेट देयरफॉर एक्स इक्वल एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर minus 4 minus 2 times 2x minus 4 plus 2 times 4 minus 2x is equal to 0. So let us simplify, my dear friends. Open the bracket. We get x cube minus 4x minus 2 का मल्टीप्लाई करिए, minus 4x plus 8 minus 4x equal to 0. Now carefully solve करिए. So we get x cube. What is minus 4x? Minus 4x and minus 4x, that is minus 12x, plus what is 8 plus 8? That is 16 is 0. Now my dear friends, यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको केवल ये चेक करना है जो ऑप्शन दिया है वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो लेट अस टेक वन बाय वन। टेक x इक्वल टू 2। अगर आप x को 2 लोगे तो चेक करो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इस ऐसे समय आप सॉल्व करने मत जाओ। पुट x इक्वल टू 2 और चेक। व्हाट इज 2 का क्यूब? 2 पुट करिए, 2 का क्यूब 8 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 16। तो 8 माइनस 24 प्लस 16। व्हाट इज 8 प्लस 16? 24। 24 माइनस 24 जीरो। तो x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई किया, उसका मतलब ऑप्शन ए हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन सी हो सकता है। लेट अस चेक फॉर माइनस 4। माइनस 4 के लिए चेक करिए। होप दैट आपको समझ में आया होगा सर क्या कहना चाहते हैं। तो चेक x इक्वल टू माइनस 4, एक्स के प्लेस पे माइनस 4 डालो। व्हाट इज माइनस 4 का क्यूब? माइनस 64। एक्स के प्लेस पे माइनस 4 डालो तो माइनस 12 इंटू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 48 प्लस 16। सो वी गेट माइनस 64 प्लस 64 विच इज 0। तो x इक्वल टू माइनस 4 ने भी सेटिस्फाई किया। तो जब भी माय डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप एमसीक्यूज में सॉल्व करने की जगह पे आप ऑप्शन का हेल्प ले लो। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सम? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सम इज ऑप्शन ए। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ x इज, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाउ टू सिंप्लीफाई? वंस अगेन पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे? x टाइम्स, चलिए पॉजिटिव x फॉर्मेट, फिर माइनस माइनस प्लस वन, तो प्लस वन टाइम फॉर्मेट एंड प्लस टू टाइम फॉर्मेट इज इक्वल टू 29। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर देंगे। नाउ फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचा? टेल मी। 1 माइनस 3 माइनस 4 5, राइट हियर 1 माइनस 3 माइनस 4 5। सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, क्या बचा? 2x माइनस 3 3 5, दैट इज 2x माइनस 3 3 5। और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचा? 2x 1 3 माइनस 4। सो वी कैन राइट 2x 1 3 minus 4. Let us solve this. So we get x times 5 into 1, that is 5, minus 3 4 minus 3 into minus 4, that is 12, plus 1 time 2x into 5, that is 10x, minus minus 3 into 3 minus 9, तो ये आ जाएगा plus 9, plus 2 times ये हो जाएगा आपका minus 8x minus 3 equal to 29। so क्या आ जाएगा? x, what is 5 minus 12? That is minus 7। 5 minus 12 is minus 7 plus 1 time 10x plus 9 plus 2 times
-8x -3 -29 is equal to 0. ये 29 को ये साइड ले लिया. So we get -7x plus 10x plus 9 minus 16x minus 6 minus 29 is 0. Now let us solve carefully. Carefully ध्यान से solve करिए. देखिए -7x ये 10x है ये 16x है. So 10x minus 16x that is minus 6x and minus 7x. तो minus 7x और minus 6x कितना हो जाएगा? That is minus 13x. अब solve करके देख लीजिएगा. Now plus 9 minus 29 that is minus 20 minus 20 and 6 that is minus 26 is equal to 0. So we get minus 26 is 13x. ये minus 13x को right side में ले लो. So what is x? X is minus 26 by 13. So x की value आ गई minus 2. So what we get x की value, my dear friends? We get x की value is minus 2. So what is the correct option? The correct option is option B. B is the right answer. होप दैट आपको सब अच्छे से समझा होगा. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. आपको यहाँ पे दिया गया है x एंड y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है. स्टार्टिंग में हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सम देखा था माय डियर फ्रेंड्स. वी नो दैट व्हाट इज i इज अंडर रूट माइनस 1. व्हाट इज i स्क्वायर माइनस 1. व्हाट इज i क्यूब माइनस i एंड व्हाट इज i रेज़ टू 4 दैट इज 1. सो आप क्या करें, आप इसको ट्राई करो. चलो लेट अस स्टार्ट. क्या लिखा है पहला? 4i. व्हाट इज i क्यूब? i क्यूब इज माइनस i. आप मेरे साथ ट्राई करिए ये सब. दिस इज 2i. नाउ 1. व्हाट इज 3? व्हाट इज i स्क्वायर? i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 3 4. एंड लास्ट एलिमेंट, लास्ट रो 5 माइनस 3 माइनस i. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ व्हिच इज इक्वल टू x प्लस iy. जस्ट सिंप्लीफाई इट. आराम से इसे केयरफुली सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. रेडी फॉर द फॉर्मेट. 4i टाइम्स फर्स्ट रो. पहले आप फॉर्मेट रेडी करो. 4i टाइम्स डिटर्मिनेंट. व्हाट इज माइनस माइनस? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस i टाइम डिटर्मिनेंट प्लस 2i टाइम डिटर्मिनेंट. ओके. सो नाउ इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हमें लास्ट में पता ही चल जाएगा. ओके. नाउ एलिमिनेट द फर्स्ट रो. अगर मैं फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करूं तो क्या बचा? टेल मी. माइनस 3 4 माइनस 3 आई. राइट डाउन. माइनस 3 4 माइनस 3 आई. सेकेंड कॉलम को अगर मैं एलिमिनेट करूं तो क्या बचेगा? 1 4 5 आई. 1 4 5 आई. और अगर मैं थर्ड कॉलम एलिमिनेट करूं तो क्या बचा? 1 माइनस 3 5 माइनस 3. ओके. 1 minus 3 5 minus 3. Now solve carefully. So we get, my dear friends, 4i bracket minus 3 into I, that is minus 3i, minus 4 into minus 3, that is minus 12. Okay. Plus I times 1 into I, that is I, minus 4 5 are 20, plus 2i times minus 3 minus minus 3 into 5, that is minus 15. तो ओपन द ब्रैकेट और पहले सिंप्लीफाई कर लो. 4i ब्रैकेट माइनस 3i प्लस 12 प्लस i टाइम्स i माइनस 20 प्लस 2i माइनस 3 प्लस 15. x प्लस आई वाई मैं नहीं लिखता हूँ, बाद में हम कंपेयर कर लेंगे लास्ट में. ओके. सो विच इज इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, 4i का मल्टीप्लाई करिए. 4i इंटू माइनस 3i, तो 4 3 जा 12, दैट इज माइनस 12i स्क्वायर. नाउ प्लस प्लस 12 4 जा 48 प्लस 48i. चलिए i का मल्टीप्लाई करिए. i इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर माइनस 20i. 2 का मल्टीप्लाई करिए. तो एक काम करिए माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट कर दो. 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया, दैट इज 12. तो 12 इंटू 2i, दैट इज 24i. सो लेट अस सिंप्लीफाई. व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज माइनस 1. ये हो जाएगा माइनस 12 into minus 1 plus 48i. What is I square? That is minus 1 minus 20i plus 24i. Now, which is equal to 12 plus, concentrate here. ध्यान दीजिए. Now ये minus 20 और ये plus 24, तो कितना आ जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा ना. तो प्लस 4i
प्लस 48 आए तो कितना हो जाएगा, प्लस 52 आए minus 1. Now what is 12 minus 1? 12 minus 1 is 11. So we get 11 plus 52i. So इसको x plus yi से compare करेंगे. What is x? X is 11. And what is y? Y is 52. So 11 comma 52 is the answer. What is the correct answer? The correct answer is option A. So this is a way you can solve the problems. Let us proceed to the next one. 2014, 2020, 2023, 2017, 2023, 2026, 111. Now ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं. Can you observe that 2014 और 2017 के बीच में 3 का गैप है, 2020 और 2023 के बीच में भी 3 का गैप है, और 2023 और 2026 के बीच में भी 3 का गैप है. Now, my dear friends, so there is a property of determinant. This is called as row number one. इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे R1. This is our row one. Sorry, this is column number one. This is column number two. This is column number three. Column one, column two, column three. मैं क्या करता हूँ? मैं कॉलम नंबर टू को कॉलम नंबर वन को कॉलम नंबर टू में से माइनस करता हूँ. दैट इज C2 माइनस C1. रफ कैलकुलेशन कर लो. C2 माइनस C1. व्हाट इज द एंट्री इन C2? C2 में क्या लिखा बोलो? 2017. मैं रफ कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूँ. 2017, 2023, 2026 माइनस माइनस माइनस. व्हाट इज द एंट्री इन C1? C1 की एंट्री बोलिए. 2014 एंट्री करते जाइए. 2020 एट 2023 आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 3 3 3. तो जब हमने C2 माइनस C1 किया माय डियर फ्रेंड्स, तो C2 माइनस C1 हमें क्या दिया? हमें C2 माइनस C1 दिया 3 3 3. ये 3 3 3 कहाँ लिखना है? सबसे पहले आपने क्या लिखा? C2. तो C2 मतलब सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे 3 3 3. फर्स्ट कॉलम नो चेंज. फर्स्ट कॉलम को एज इट इज कॉपी कर लो. फर्स्ट कॉलम एज इट इज कॉपी. दैट इज 2014, 2020 and 2023. और थर्ड कॉलम एज इट इज कॉपी 1 1 1. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम में 3 3 3 है, तो हम 3 बाहर कॉमन ले सकते हैं. तो वी गेट 2014, 2020, 2023. यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा. ये जो 3 है ना, ये कॉमन लिया. क्या ले लिया? कॉमन. तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 1 1. और लास्ट कॉलम में 1 1 1. माय डियर फ्रेंड्स, जब भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है? सेम है, तो हम बोल सकते हैं सिंस C2 आइडेंटिकल का मतलब 3 लाइन. ये 3 लाइन्स हमने खींचे ना, उसका मतलब आइडेंटिकल. जब भी C2 और C3 कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल होता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 0. मतलब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 हो गया. व्हाट इज आंसर? 0. क्यों 0 हुआ? वापस रिपीट कर रहा हूं. बिकॉज सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स सेम है. जब भी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम मतलब कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो सेम हो, एकदम सेम हो, सारी एंट्री सेम हो, तो वो डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना है, उसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, find d at x from the following equation using Cramer's rule. आपको Cramer's rule का यूज करके d at x फाइंड करना है. Now, what is d at x? यहाँ पे my dear friends ध्यान से देखिए d at x कैसे आता है. तो ये आपको इक्वेशन दिया है, उसमें ये d1, d2, d3 ये जो कांस्टेंट है वो फर्स्ट कॉलम में लिखना होता है. कहाँ लिखना होता है? फर्स्ट कॉलम. तो what is d at x? चलो स्टार्ट करो. D at x. Now, what is our D1, D2, D3 in our case? That is 2, 3 and minus 1. ये 2, 3 और minus 1 फर्स्ट कॉलम में आएगा. और आप देख सकते हैं B1, B2, B3 that is y का कोइफिशिएंट. ये देखिए y का कोइफिशिएंट है. किसका? y का. बाद में C1, C2, C3 z का कोइफिशिएंट है. मतलब सेकंड कॉलम में y का कोइफिशिएंट और थर्ड कॉलम में z का कोइफिशिएंट लिखना है. Okay. Now what is the y का कोएफिशिएंट इन आवर केस? इन आवर केस y का कोएफिशिएंट ध्यान से देखो तो क्या है y का कोएफिशिएंट? दैट इज 1. यस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज 1 माइनस 2 माइनस 1. तो आप लिख देंगे 1 माइनस 2 माइनस 1. व्हाट इज द z का कोएफिशिएंट? z का कोएफिशिएंट आप ध्यान से देखो क्या है? -1 1 -3 -1
1 -3. जस्ट कैलकुलेट डी एट एक्स, क्योंकि आपको डी एट एक्स क्वेश्चन में पूछा है. तो दिस इज अ वे यू हैव टू कैलकुलेट डी एट एक्स. नाउ आइदर यू यूज स्टैंडर्ड मेथड, या पीयूष सर ने जो आपको शॉर्टकट दिया वो यूज करिए. मैंने क्या शॉर्टकट दिखा, चलो मैं इसमें आपको शॉर्टकट रिवाइज करके देता हूँ. आपको क्या करना है, 2 और -1 को ये साइड में लिखना है. ध्यान से देखिए, 2 -1, -1 और -3 को ये साइड में लिखना है, -1 -3. नाउ आफ्टर दैट आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर दिस आपको मल्टीप्लाई करना है. किसका मल्टीप्लाई करना है, -1 3 -1, 2 -2 -3 एंड 1 1 -1. चलिए लेट अस स्टार्ट. सॉल्व भी कर दीजिए पहले इसे. तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके वन बाय वन पहले लिख लेते हैं ब्रैकेट में. व्हाट इज -1 3 -1, -1 इंटू -1 दैट इज 1, 1 इन 3 जा 3 प्लस, चलो नेक्स्ट वाला, 2 इंटू -2 इंटू -3, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12. चलिए लास्ट एलिमेंट, 1 इंटू 1 इंटू -1 दैट इज -1. दैट्स ऑल. फिर माइनस का साइन. अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दीजिएगा. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस साइड, दैट इज 1 3 -3. केयरफुली रहिएगा, -1 2 -1 एंड 2 1 -1. चलिए मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखिए, ये मेरा ट्रिक्स है जो आप यूज कर सकते हैं. तो 1 इंटू 3 इंटू -3, 3 3 जा 9, दैट इज -9. चलिए, -1 -2 -1, तो 3 बार माइनस है तो माइनस आएगा. 2 1 जा 2. चलिए लास्ट वाला, 2 1 जा 2 इंटू -1, तो -2. जस्ट सिंप्लीफाई इट. 12 प्लस 3 15, 15 में से 1 गया, दैट इज 14 माइनस. नाउ व्हाट इज -9 -2 -13. Now, my dear friends, open the bracket. We get 14 plus 13. That is 27. So, what is D at x? The correct answer is option B. Hope that आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Let us proceed to the next sum. The area of a triangle which vertices this is 9 square unit. The value of k. Now, what is the area of triangle? My dear friends, यहाँ पे मैंने आपको formula दिया है. Area of triangle is 1/2 determinant x1, x2, x3, y1, y2, y3, and 1 1 1. So, let us use this formula. Now, area of triangle is half x1, x2, x3. What is x1? -3. What is x2? That is 3. And what is x3? That is 0. Now, what is y1? 0, 0, k. And last में 1 1 1. Now, my dear friends, area of triangle is given, that is 9. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, दैट इज 9. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको ये के पूछा है, और के क्या है, के कोऑर्डिनेट है. तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है. तो जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन रहे और आपको कोऑर्डिनेट पूछे, तो जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह वैल्यू डालोगे, तो आपको प्लस माइनस लेना है. क्या लेना है, +-9. क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. तो जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू जो दिया है 9 दिया है ना, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लस से +-9 लिखेंगे. द रीजन बिहाइंड इट, कोऑर्डिनेट प्लस माइनस हो सकता है. तो 9 इज हाफ -3 -3 0 1 3 0 1 0 k 1. ओके. नाउ ये 2 आपका ये साइड में आ जाएगा. सो वी गेट -18 इज इक्वल टू. नाउ यूज स्टैंडर्ड मेथड. आपको स्टैंडर्ड मेथड चाहिए तो आप स्टैंडर्ड मेथड यूज करिए, दैट इज पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव. चलिए, तो प्लस माइनस दैट इज -3 टाइम्स डिटर्मिनेंट, दैट इज द फॉर्मेट, -0 टाइम डिटर्मिनेंट और +1 टाइम डिटर्मिनेंट. नाउ फर्स्ट रो एलिमिनेट. चलो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स क्या बता, 0 1 k 1. तो राइट डाउन 0 1 k 1. ये देखो, ये -0 टाइम है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा. नो नीड टू राइट, टाइम वेस्ट होएगा. थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 3 0 0 k. सो राइट डाउन 3 0 0 k. सो वी हैव टू सॉल्व -18, दैट इज +-18, सॉरी, +-18 इज इक्वल टू -3 टाइम्स 0 1 जा 0 -k
माइनस जीरो का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट में हो गया जीरो, वन टाइम 3k minus 0. To simplify, we get plus minus 18 equal to minus 3 minus k plus 3k. So we get plus minus 18 is 3k plus 3k. So we get plus minus 18 equal to 6k. So k is plus minus 18 by 6. So we get k की value plus minus 3. What is the value of k? K का value आएगा plus minus 3. So the correct option is, my dear friends, यहाँ पे C option प्रिंट नहीं है. The correct answer is option C, that is plus minus 3. होप दैट आपको समझ में आया होगा. थ्री भी नहीं, माइनस थ्री भी नहीं. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्लस माइनस थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are this. What is the area of triangle? Half x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. Just substitute. So that is half. Determinant. What is x1 x2 x3? That is 2 5 minus 2, 2 5 minus 2. Next, minus 6 4 4 and 1 1 1. Let us simplify it. So carefully solve करना है my dear friends. Positive, negative, positive. So we get half bracket 2 times determinant minus minus plus 6 times determinant. This is plus 6 ना, 6 times, and plus 1 time determinant bracket close. Now first row eliminate. अगर मैं फर्स्ट कॉलम कट करूं तो क्या आएगा? 4 1 4 1. यस. सो इसको आप कट कर दीजिए. 4 1 4 1 4 1 4 1. सेकंड कॉलम एलिमिनेट करूं तो 5 1 minus 2 1, 5 1 minus 2 1. और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करूं तो 5 4 minus 2 4, 5 4 minus 2 4. So solve carefully. So we get half bracket 2 times 4 1 ja 4, 4 minus 4, 4 minus 4 is 0, 6 times 5 1 ja 5 minus minus 2 into 1 minus 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2. 1 टाइम 5 4 जा 20 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 8. होप दैट आपको ये अभी डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने में आप माहिर हो गए होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं. 2 0 जा 0, 5 plus 2 that is 7, 7 6 जा 42, 20 plus 8 that is 28. Is that clear? So let us simplify. So we get half times 42 plus 28, that is 70. So we get 35 square units. What is the correct answer? 35 square units. So correct answer is option A, 35 square units. Let us proceed to next sum. Now, if points this are collinear, then a raised to minus 1 plus b raised to minus 1 will be equal to. Now, देखो collinear दिया है. What is the concept of collinear? If points are collinear, then area of triangle is 0. So that means half. What is x1? A, x2 0, x3 1. A 0 1, A 0 1. Now second coordinate 0 B 1, 0 B 1, and third column में 1 1 1. एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा. याद रखिए, जब भी कोलिनियर बोलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेना है? जीरो लेना है. तो लेट अस सिंप्लीफाई इट. सो ये 2 को आप ये साइड ले जाओ माय डियर फ्रेंड्स. तो 2 0 जा 0. तो वी गेट a 0 1, 0 b 1, 1 1 1 is 0 into 2. So positive, negative, positive. Let's continue. तो positive a time determinant minus 0 time determinant plus 1 time determinant. 2 0 जा 0. फर्स्ट रो गया. चलो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो क्या आएगा? b 1 1 1, दैट इज b 1 1 1. सेकंड कॉलम गया 0 1 1 1, 0 1 1 1. थर्ड कॉलम गया 0 b 1 1. लेट अस सॉल्व. सो वी गेट a. चलो b into 1, that is b minus 1. Yes, we get b minus 1.
माइनस जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्लस वन टाइम जीरो वन जा जीरो minus b one ja b is 0. So we get, open the bracket, ab minus a. Now ये 1 का मल्टीप्लाई करिए, 1 into minus b equal to 0. So we get ab is equal to a plus b. Now my dear friends, ये ab को क्या करते हैं हम लोग, अपॉन में ले लेते हैं. So we get 1 is equal to a plus b upon ab. Now separate the denominator, a upon ab plus b upon ab. B get cancel, here a get cancel. We get a is, ये b का पावर क्या है, 1 ना, इसको ऊपर ले लो तो b रेस टू माइनस 1 हो जाएगा. और ये a का पावर क्या है, a का पावर 1 है, इसको ऊपर ले लो, you will get a रेस टू माइनस 1. So finally we get a raised to minus 1 plus b raised to minus 1. The answer is 1. So what is the correct answer? The correct answer is option C. Is this clear? So this is very interesting problem. इस तरह के भी sums exams में entrance में पूछे जाते हैं. So do more practice on this. The correct answer is option C. Next one. Find the value of k if the following equations are consistent. अगर ये equations consistent है तो k की वैल्यू निकालिए. तो भी अभी हमने बताया consistent होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा और सिंपली a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 0 0. So let us take, what is the x की coefficient 3 k2, first column 3 k2, second column y का coefficient that is 1 1 2 minus 1 1 2 minus 1 2 minus 1. Third, that is minus 2 minus 3 minus 3 equal to क्या ले लो, 0. Now positive negative positive, just simplify carefully. Let's continue. So we get 3 times determinant minus 1 time determinant plus minus minus 2. So minus 2 times determinant is equal to 0. First रो गया. Now first column eliminate करेंगे तो क्या आएगा, tell me. 2 minus 3 minus 1 minus 3. 2 minus 3 minus 1 minus 3. Second column गया, k minus 3 2 minus 3, k minus 3 2 minus 3. Third column गया, k2 2 minus 1, k 2 2 minus 1. Now let us simplify. Solve करते हैं इसे, carefully ध्यान से solve करिए dear friends. So we get therefore 3 times we get minus 6 minus minus 1 into minus 3, that is 3, minus 1 time minus 3k minus 3k minus minus 3 into 2, that is minus 6. तो ये हो जाएगा आपका plus 6 minus 2 time minus k minus 4 is equal to 0. So let us solve. 3 times, what is minus 6 minus 3? That is minus 9. Now minus 1 time minus 3k plus 6 minus 2 time minus k minus 4 equal to 0. So open the bracket, you will get minus 27, open the bracket, minus minus plus 3k minus 6 minus minus plus 2k minus minus plus 8 is 0. Now what is 3k plus 2k? That is 5k. So we get 5k. Now my dear friends, minus 27 plus 8, that is minus 19, and minus 19 and minus 6, that is minus 25 equal to 0. So we get 5k equal to 25. So we get k की value 25 upon 5. So we get k की value. Hope that आपको समझा होगा. So what is the value of k? K का value is 5. Option A is the right answer. So my dear friends, do carefully. Calculation बराबर करेंगे, आपको आंसर मिलना ही है. Let us see if the points this are collinear, then what is the value of k? So देख सकते हैं आप my dear friends, अभी अभी हमने यहाँ पे क्या find the value of k, the consistent था, और अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये points collinear है तो k की वैल्यू बताइए. अभी हमने बोला अगर collinear होगा, ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0. तो हाफ, what is half determinant, what is the first element, 5 minus 6, sorry, 5 6 8, that is the first column, 5 6 8. Now next 2
-1 -7, 2 -1 -7 एंड नेक्स्ट 4 2 के। आप देख सकते हैं 4 2 के, 4 2 के, 4 2 के इज इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, ये थ्री डायमेंशनल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x कॉमा y कॉमा z है, मतलब ये 3D में है। ये जो आपका ट्रायंगल है वो थ्री डायमेंशनल है, 3D ट्रायंगल। 3D, डी मतलब डायमेंशनल। तो ये आपका लाइक ऐसा हो रहा है x1 y1 z1, होप दैट x2 y2 z2, x3 y3 z3। और तो इस तरह से आंसर है। और अगर यही टू डायमेंशनल था, जब याद है टू डायमेंशनल में हमने सम कैसे किया था, लेट अस सी। देखिए आप देख सकते हैं अ, हमने यहाँ पे कोलिनियर का एक सम किया होगा। आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब ये 2D में था, देखिए जैसे ये 2D में था तो हम 1 1 1 लेते थे, राइट। अगर ये 2D में होगा तो हम 1 1 1 लेते हैं। लेट अस सी सॉल्व दिस, कैसे करेंगे हम। तो आप ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। ये 2 ये साइड जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, 2 0 जा 0, सो यू विल गेट 5 2 4 6 -1 2 8 -7 k, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। नाउ आप इस सम को ट्राई करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और आपको सॉल्व करने पे इसको फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो आपको आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट k की वैल्यू -2। तो ट्राई योर सेल्फ। आपको अगर आंसर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आपको k की वैल्यू -2 आएगी। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। The cost of two books, six notebooks, and three pens is rupees 120। तो कॉस्ट ऑफ टू बुक्स, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ अ बुक रुपीज एक्स, फिर कॉस्ट ऑफ अ पेन रुपीज वाई। ओके, सॉरी पेन मतलब क्या क्या यूज किया, देखो बुक, नोटबुक और पेन। ओके, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बुक लिया, उसके बाद आप नोटबुक ले लो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, और बाद में ले लो कॉस्ट ऑफ अ पेन रुपीज जेड। ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू इक्वेशंस। टू बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x, सिक्स नोटबुक का 6y, थ्री पेन का 3z इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ थ्री बुक दैट इज 3x, फोर नोटबुक 4y, टू पेन 2z 105। नेक्स्ट, while using कॉस्ट ऑफ फाइव बुक्स मतलब 5x, सेवन नोटबुक 7y, four pen that is 4z 183। Using this information find the cost of one book। one book का मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए। Now my dear friends, there are three equation, three unknowns। तो use Cramer's rule to solve this। देखिए अभी Cramer's rule से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत बड़ा होगा, तो I will give you best trick। use ऑप्शन मेथड। क्या यूज करना है आपको, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या करेंगे हम अज्यूम करेंगे ऑप्शन ए, दैट इज 15 12 6। तो मतलब x के जगह पे 15, y के जगह पे 12 और z के जगह पे 6 डालेंगे, और ये ऑल दीज थ्री इक्वेशंस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई किया तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑप्शन बी चेक करिए, ऑप्शन सी चेक करिए। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। एमसीक्यू में आपको इसी तरह करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट ये थियरी क्वेश्चन होगा तो आपको पूरा क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके दिखाना होगा। लेट अस ट्राई। मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, पहला क्या है बोलो, 2x प्लस 6y प्लस 3z। x की जगह पे 15 डालो, चलो 2 इंटू 15 दैट इज 30, 6 इंटू 12 72, 3 इंटू z 3 6 18। तो 30 प्लस 72 प्लस 18, तो 18 प्लस 2 20, 20 प्लस
70, that is 90, 90 plus 30, that is 120. First equation satisfy हो गया my dear friends. Let us check the second one. ये पहला इक्वेशन हो गया. हाँ, सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं. 3x, चलो सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x plus 4y plus 2z. तो x के प्लेस पे 15 डालिए. 3 into 15 45, 4 into 12 48, 2 into 6 12. So 48 plus 12, that is 60, 60 plus 45 105. Second equation satisfied. चलिए let us check the third equation. Third equation भी satisfy कर लिया तो sum over. What is the third equation? That is 5x plus 7y plus 4z. चलिए x के प्लेस पे क्या डालेंगे? 15. तो 15 5 जा 75. y के प्लेस पे क्या डालेंगे? 12. y के प्लेस पे 12. तो 12 7 जा 94, 84 plus 4z, 4 6 are 24. So let us try. So which is equal to now 5 plus 4 plus 4 13, 1 carry, 8 plus 2 10, 10 plus 1 11, 11 plus 7 that is 18, 183. आप चेक कर सकते हैं. Yes, 183. So third equation is also satisfied. Third equation भी my dear friends satisfy हो गया. So option A ने all three equations को क्या किया? All these three equation is satisfied by option A. So option A is correct. So what is the cost of book? Cost of book is 15 rupees. वन बुक का कॉस्ट 15 रुपीज हो गया. वन नोटबुक का कॉस्ट 12 रुपीज हो गया. और वन पेन का कॉस्ट 6 रुपीज हो गया. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो ऐसे लेंदी सम्स को माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन मेथड से आप ट्राई करके जा सकते हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके दिखाए. होप दैट आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे. नाउ डिटरमिनेंट पे कुछ ही दिनों में मैं सेकंड वीडियो भी रिलीज करूंगा जो कि एमसीक्यू पे होगा और जिसका लेवल लिटिल बिट इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा. सो आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए एंड बी रेडी फॉर लेक्चर नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन डिटरमिनेंट. थैंक यू एवरीवन. बाय एवरीवन.